This call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, I did talk about increasing and decreasing of a function. So let's consider now a few questions based on a simple rule. A function is increasing if its derivative is positive, and a function is decreasing if its derivative is negative. We also did talk about increasing function and strictly increasing function. Just that in case of increasing, I am going to make a use of close bracket, and for a strictly increasing, it's about the open bracket. I also did talk about the graph of these two functions, but practically speaking, when you have your board examination, we have the questions like this. So this was the last question given to you in homework. Show that this function is neither increasing nor decreasing on 0 to 1. ये इसका मतलब ये इंटरवल है. Open bracket, another way of representation. So my function is x square minus x plus 1. Find out its derivative 2x minus 1 for increasing or decreasing. अब ये जनरल चीज है कि दोनों में हम क्या करेंगे. The formal method goes like this. This is very important. Put f dash x equal to 0. So when I put this as equal to 0, x is equal to 1 by 2. Now note carefully, my interval is from 0 to 1. यहाँ 0 और ये 1 है, ओपन ब्रैकेट था, और ये कहीं पर एक वैल्यू आ गई 1 by 2. So that my number line is divided into two सब इंटरवल्स. एक ये आ गया और एक ये वाला इंटरवल आ गया है. Recall in 11th itself we did talk about if from extreme right hand side start placing plus minus sign. Why is it so? एक क्विकली हम यहां देख लेते हैं कि होता क्या है. फॉर इंक्रीजिंग what I want actually f dash x should be positive, means 2x minus 1, ये था ना मेरा डेरिवेटिव. So 2x minus 1 has to be positive और x is greater than half. तो क्लियरली यहां पर x greater than half होगा, तो इसमें डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है. देयरफॉर क्या कंक्लूजन आ गया कि f इज इंक्रीजिंग कब, व्हेन x बिलोंग्स टू हाफ से लेकर 1 तक. और फिर सोचिए लॉजिकली, फॉर डिक्रीजिंग व्हाट वाज द कंडीशन. डेरिवेटिव हैज टू बी नेगेटिव, means 2x minus 1 is negative or x less than half. Clearly यहां हो जाएगा x less than half, और this imply x belongs to 0 से 1 by 2, और इस इंटरवल में हो गया f डिक्रीजिंग. तो ओवरऑल आपसे कहां की बात करी थी, इन द इंटरवल 0 to 1. So in the interval 0 to 1, what we have observed, in 0 to half, it is decreasing function. In half to 1, it is increasing. तो इसीलिए ओवरऑल जब मैं बात करूंगा 0 to 1, तो हम कहेंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. तो कंबाइंड इन द इंटरवल 0 to 1, neither increasing nor decreasing. The inequalities को सॉल्व करना हम ऑलरेडी 11th में सीख चुके हैं. Either it is a quadratic inequality or even a cubic inequality. So such type of inequalities will be occurring now. अब उस चीज का रोल जो हमने 11th में सीखा था, अब वो आने वाला है.
एनीवे आप चेक करिए, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस आई ऑलरेडी हैव डिस्कस विद यू ऑल। इसका डेरिवेटिव 3 है विच इज पॉजिटिव, हेंस इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्लियरली 2 into e की पावर 2x विच इज पॉजिटिव, हेंस इंक्रीजिंग फंक्शन। cos x का मैंने आपको बता दिया था, फॉर दिस you can check out for sin x in your homework. Imagine if possible the graph of this function. So graph से भी कई बार हमारे पास conclusions आ जाते हैं। If it would have been a one marker MCQ, तो मैं क्या visualize कर सकता था about the graph of this function? So मुझे जाना है, सिर्फ पाई तक कह रहे हैं, चलिए। So this is pi, this is pi by 2 and this is 3 pi by 2. So how is the graph of sin x? So this और फिर this like this. So अगर अब आप ध्यान से इस चीज पे फोकस करें, 0 से pi by 2 में ये ग्राफ गया है मेरा, क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन पता चल ही रहा है। ये ग्राफ जो भी जाएगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और फिर आप देखें अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 से पाई में अगर मैं ग्राफ देखूं वो ये जा रहा है। ग्राफ ऐसा जब भी आएगा वो आपको अपने आप धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो चुका होगा कि ये हो गया है डिक्रीजिंग फंक्शन का। सो थ्रू आउट जब मैं बात करूंगा 0 से पाई में, तो ऑफ कोर्स जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। You solve this question using derivative. जनरली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चेक दिस आउट। फाइंड द इंटरवल्स in which the function this function is increasing and then decreasing. तो आप चेक करिए, सबसे पहला काम, अब इसका ग्राफ तो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अनलेस आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो अब तो फॉर्मल मेथड पर आना ही पड़ेगा। गेट इट्स डेरिवेटिव, ट्वेल्व कॉमन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या बन के आ रहा है स्प्लिटिंग? यस, एनीवन? -3x plus 2x. -3x and then plus 2x. Combine first two last two. आप ये स्टेप एक दो स्किप करके डायरेक्ट भी लिख देते, then it is also fine. So this is actually x plus 2 into x minus 3. तो ये दो स्टेप्स अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं दैट इज ओके, आप डायरेक्ट ये लिख देते हैं, परफेक्ट। अब क्या रूल बताया है? वंस यू रिटर्न द डेरिवेटिव, फिर क्या कहेंगे? फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग put derivative equal to 0. When I put this derivative equal to 0, I will get the values of x as -2 and 3, which are referred to as my critical points. So basic idea क्या होता है critical points का? They are the points where my function may not be defined or my function is changing its behavior. हो सकता है कि -2 से जस्ट पहले मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग हो और -2 को क्रॉस करते ही वो चेंज होकर डिक्रीजिंग आ रहा हो। So that is the basic idea about critical points.
ड्रॉ द नंबर लाइन। ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, एंड लोकेट दिस पॉइंट्स। ये रहा -2 और ये रहा 3। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट पॉइंट आउट 0 और 1 और 2। कोई भी पॉइंट आपको नहीं लिखना अदर देन द क्रिटिकल पॉइंट्स। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, मेनी अ टाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट साथ में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। इट इज नॉट अ माई क्रिटिकल पॉइंट। तो नंबर लाइन पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को शो करना है। फर्दर आप चेक करिए, एज डिस्कस्ड इन 11th क्लास, एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस, माइनस एंड प्लस, ये हम प्लेसमेंट कर देंगे। एंड प्लस का मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग। तो एफ क्या है? सॉरी, एफ इज इंक्रीजिंग। कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग आ रहा है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -2 का इंटरवल, यूनियन 3 to infinity, एंड एफ इज डिक्रीजिंग। कहाँ हो रहा है डिक्रीजिंग? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3, which is your required answer. But there are two important things you need to understand here. First thing, as I have used the term increasing, so you will find again book to book, author to author क्या वेरी कर सकता है? रिमेंबर मैंने क्या बताया था? इंक्रीजिंग है तो हो सकता है आपको यहां पर क्लोज इंटरवल लगाकर बस किसी बुक में आंसर दे दिया हो, और किसी में ओपन के साथ। बोर्ड के अंदर दोनों एक्सेप्टेबल है, रिमेंबर दैट। तो इसीलिए इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कंसेप्चुअली। आई जनरली प्रेफर ओपन इंटरवल, बट इवन अगर आपने क्लोज लगा दिया, नो नीड टू वरी। बट समटाइम्स यू विल फाइंड इवन के एग्जामिनर या एनसीईआरटी बुक में भी आपको एक टेबल मिलने वाली है साथ में, कि ये कंक्लूजन आफ्टर द टेबल लिखा होगा। कि ये अचानक से ये मैंने राइट साइड से प्लस माइनस प्लस क्यों लगाया है? तो सम ऑफ द एग्जामिनर्स में डिडक्ट हाफ मार्क फॉर दिस के आपने प्रॉपर रीजन आउट नहीं किया है। तो वो रीजन आउट कैसे करते हैं वो आप यहां समझिए, कि वाई इट इज प्लस हेयर, वाई नेगेटिव, देन वाई प्लस, वाई ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर। इंटरवल, नेक्स्ट कॉलम साइन ऑफ डेरिवेटिव, और फिर मेरा कंक्लूजन वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो व्हाट वर 3 इंटरवल्स? -∞ से -2, नेक्स्ट था -2 से 3, एंड नेक्स्ट इंटरवल इज 3 to infinity. We need to check out now the behavior of derivative in this interval, -∞ से -2, -∞ से -2 में चूज एनी वैल्यू। ये मेंटल कैलकुलेशन में बिल्कुल आप करेंगे, एनी वैल्यू से -3 इस इंटरवल में चूज करनी है। और डेरिवेटिव क्या था आप चेक करिए, ये मेरा डेरिवेटिव लिखा गया था। सो माय डेरिवेटिव वाज आफ्टर फैक्टराइजेशन। ये है, आप वैल्यू पुट कर दो -3, तो क्लियरली मुझे आंसर से नहीं मतलब, ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्चुअल में देखो तो -1, और ये -6, फाइनली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, आई जस्ट नीड टू बी श्योर कि ये वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव। तो आई ऑब्जर्व दैट आई एम गेटिंग पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव कैसे आया होगा? ये पॉजिटिव, 12 तो पॉजिटिव था ही,
फिर ये नेगेटिव आया, नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव आई, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो अल्टीमेटली नेगेटिव नेगेटिव ने बना दिया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बस वो एरो हेड से दिखा रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग होगा मैं ऐसे दिखा दूंगा। तो दैट इज द रीजन कि जो मैंने ये डायरेक्ट कंक्लूड कर लिया था। एनीवे, चेकआउट -2 to 3 रैंडम पॉइंट सोचिए इस इंटरवल में। लेट मी चूज अ सिंपल वैल्यू से 0। व्हाट इज डेरिवेटिव एट 0? ये रहा मेरा डेरिवेटिव। 0 आप जब पुट करेंगे, आंसर नेगेटिव आ रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ए प्लस प्लस माइनस, फाइनली प्रोडक्ट इज नेगेटिव, हेंस डिक्रीजिंग। और यही हमने कंक्लूड करा था कि इस इंटरवल में इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड फाइनली 3 to infinity, 3 to infinity में लेट मी टेक एक्सेस 4। व्हाट इज डेरिवेटिव एट 4? आप चेक कर लीजिए, इट हैज टू बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव आ रहा होगा। सो पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, फाइनल प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। यही हमने यहां पर कंक्लूड किया था। सो एक्चुअल अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, तो वो टेबल ऑफ कोर्स पहले आएगी, और फिर ये मेरा कंक्लूजन आफ्टर गोइंग थ्रू द टेबल ये आ जाता है। बट बेस्ड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि ये एक रूल की तरह क्या बन गया कि हमेशा अगर मेरा डेरिवेटिव जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बोल रहा हूं, इफ माय डेरिवेटिव is with x and y, x as a positive coefficient, if x has the positive coefficient only, तब ये हमेशा एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली साइन आ जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, क्या मतलब, पॉसिबली एक्स का साइन बाहर यहां नेगेटिव होता, -x+2 होता, then this method will not work. In fact रिवर्स में आ जाता, राइट साइड से माइनस प्लस माइनस होता। वो क्यों होता, वो आपको क्लियर होता एक्चुअली यूजिंग द आइडिया ऑफ द टेबल। सो आई हाईली रिकमेंड, draw the table, show it, and then conclude for plus, minus and plus। जबकि आंसर इसके बिना भी आप बता सकते हैं वेरी क्विकली। एनी डाउट टू एनीवन? मार्क योर अटेंडेंस। So this is a very straightforward question, similar to the last one, for your homework. Now check it out, this question. Find the interval where this is strictly increasing, strictly decreasing. Strictly word अगर क्वेश्चन में दे दिया है तब तो पक्का आप ओपन ब्रैकेट ही यूज करना, ये बस एक याद रखना। अदरवाइज बोर्ड विल अवॉइड यूजिंग द टर्म्स लाइक दिस।
ठीक है, बट आप स्ट्रिक्टली ही एज्यूम कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. फंक्शन इज find its derivative. Of course, minus 6 common. Splitting the middle term. So ये तो देखते ही क्लियर है. सो चेक करिए. अब जब मैं बात करूंगा फॉर strictly increasing or strictly decreasing, put f dash x equals 0. This will give me the critical points -1 and -2. Number line -2 and then -1. Ordering in a proper manner. और आप चेक करिए, जो मैंने आपको एक रूल बताया उसके हिसाब से तो क्या हमने याद कर लिया था, प्लस माइनस प्लस. बट दिस इज रॉन्ग. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाई दिस इज रॉन्ग? यहां एक्चुअली माइनस प्लस माइनस आने वाला है. Any idea, any observation why this will be changed here? Note carefully, the derivative already has a negative term. तो जो भी आप अगर टेबल बनाते, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है, इमेजिन अ सिचुएशन, टेबल बनती, तो मैं एक पार्ट में बता देता हूं. चलो सिर्फ एक इस इंटरवल को फोकस करो. -1 टू इंफिनिटी. चूज एनी रैंडम पॉइंट से 0. अब जब मैं एफ डैश एट 0 निकालता, याद रखिए -6 तो ऑलरेडी है यहां पर नेगेटिव टर्म. फिर मैं जब 0 पुट करता एंड 0, तो फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म. तो इसीलिए जो पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा था वो एक्चुअली नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. सो दैट आइडिया क्लियर होगा कि अगर इसका नेगेटिव बना है तो नेचुरली नेक्स्ट विल बी पॉजिटिव, नेक्स्ट वुड बी नेगेटिव. That behavior you can check out with the table, but now I'm expecting you to draw the table in your homework, and the final conclusion would be strictly increasing कहाँ आया है, when x belongs to -2 to -1, and it is strictly decreasing when x belongs to जहां जहां नेगेटिव लग गया. Your required answer. आई एम श्योर ये आइडिया क्लियर है. कॉमन मिस्टेक बताता हूं, वही एक जो चीजें हम रट लेते हैं कि एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस रखना है, तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाता, टोटली इंटरचेंज हो जाता. जहां इंक्रीजिंग है आप डिक्रीजिंग कह देते एंड वाइस वर्सा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जब डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो रहा हो. Find the interval where this function is increasing or decreasing. Clearly x cannot be 0, तभी function define होगा. ये एनसीईआरटी मिसलेनियस से डायरेक्ट मैंने ले लिया है. तो डेरिवेटिव इज
3x² और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेक इट आउट, दिस इज एक्चुअली x³ प्लस x⁻³ n(x(n-1). इन अ वेरी सिंपल वे आप इस तरह से डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका, x⁻n का डेरिवेटिव n(x(n-1). और ये आ गया x⁻⁻4, नीचे आकर x⁻4। प्लीज, ये कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में फंक्शन एलसीएम ले लेते हैं, देन दे स्टार्ट अप्लाइंग कोशेंट रूल। इट विल unnecessarily make the easier situation to a difficult one। अलग अलग डेरिवेटिव जैसे मैंने निकाला है बिल्कुल वैसे करिए। अब एक बार एलसीएम लेकर देखिए क्या आ गया। क्रॉस करा, बेस सेम, पावर्स आर एडेड, देन in the numerator 3 common, then I can write x⁻6 as x³ का स्क्वायर और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, a² माइनस b²। रोल ऑफ डेरिवेटिव इज ओवर, अब सिर्फ एलजेब्रा की बात हो रही है। तो दिस इज a² माइनस b² विल गिव मी a प्लस b into a minus b, which is equal to aq plus bq, and this is aq minus bq। aq plus bq क्या होगा, a plus b और फिर a² plus b² minus ab। एंड a³ माइनस b³ क्या होगा, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, पुट डेरिवेटिव इक्वल्स 0। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे, कैन यू टेल मी फाइनली आंसर क्या आने वाला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। हम रियल डोमेन में बात कर रहे हैं, तो इन रियल डोमेन only this will contribute and this will contribute for derivative as 0। याद रखिए ये बाकी फैक्टर रियल डोमेन में आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। इन दोनों का डिस्क्रिमिनेंट डी याद है, 10th में पढ़ा हुआ है, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इनका नेगेटिव आ रहा है, तो हेंस दिस व्हेन इक्वेटेड टू 0, that quadratic equation will not have a real roots। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया, ओनली व्हेन x प्लस 1 इज 0 से -1 एंड व्हेन x माइनस 1 इज 0 इट इज 1। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग is जब हम कहते हैं पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हेन डेरिवेटिव वैनिशेस, मतलब डेरिवेटिव 0 हो जाए या डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं हो। तो चेक करो मेरा डेरिवेटिव डिफाइंड कब नहीं है, व्हेन x इज 0। तो एक तरह से यहां मुझे क्रिटिकल पॉइंट में 0 भी लेना चाहिए था conceptually, but in the question itself they have mentioned x should not be 0, इसीलिए I will not consider 0 here। Once I have these critical points, अब तो देखो एक लाइन का क्वेश्चन बचा है,
ये because of this my number line divided into these three intervals starting with the right hand side, क्योंकि देखो यहां डेरिवेटिव जो मेरा आया था x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और बाहर यहां नेगेटिव का साइन नहीं है, इसीलिए यूजुअल मेथड विल बी अप्लाइड एंड व्हाट दैट सेज प्लस माइनस प्लस। आप टेबल बनाकर देख लीजिएगा एंड देयरफॉर माय कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट पार्ट, f is increasing when x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Second part, f is decreasing when, डिक्रीजिंग का मतलब जहां नेगेटिव साइन लगा है, -1 to 1. Your required answer. I'm waiting for a minute. स्टार्टिंग से एक बार पढ़िए ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लॉजिकल। एंड डोंट बी साइलेंट एवरी टाइम। कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज रेज योर कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड में पक्का आने वाला है। Check this out. Find the interval in which this function is increasing and decreasing. तो वो ये आज जो मैं बात कर रहा हूं that is considering the polynomial functions. तो ये एक polynomial है, बाई क्वाड्रेटिक है. So only idea is derivative इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, मींस क्यूबिक आएगा. चलिए देखते हैं पहले. ये फंक्शन है, फाइंड इट्स डेरिवेटिव. सो 3/10 इंटू एक्स पावर 4 का 4x³ माइनस 4/5 इंटू 3x² माइनस 6x हो गया एंड देन प्लस 36/5. I can write this as ये 4 और 10 कैंसल हो गया, so 2/5, 2 into 3, 6/5 x³ minus 12/5 x² minus 6x plus 36/5. Take the LCM, 1/5 throughout बाहर, 6x³ minus 12x² minus 30x plus 36. अगेन डेरिवेटिव का काम तो खत्म, अब एल्जेब्रा स्टार्ट हो चुकी है. नेचुरली ऊपर से 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन, for increasing decreasing I am going to put this as 0. या तो आप इसको यहीं पर ही फैक्टराइज कर दीजिए. एंड हाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज दिस, एनीवन?
This is a cubic polynomial. I cannot use splitting the middle term. Which method should we use here? So put x is equal to 1. Yes, I mean, आप किस मेथड की बात कर रहे हैं? फैक्टर थ्योरम, क्लास नाइन्थ. सो नाइन्थ में आपने ये मेथड सीखा हुआ है कि हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज दिस. वो रूल क्या था? नाइन्थ का रूल क्विकली बता रहा हूं. लुक एट द कांस्टेंट टर्म. यहाँ 6 है. 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन. जनरली इनमें से ही कोई ना कोई हेल्प कर देगा, राइट? तो अब आप चेक करिए, मेरे पास आप x को 1 पुट करके देखिए इसमें, इस फंक्शन में, डेरिवेटिव में बेसिकली. तो 1 के ऊपर डेरिवेटिव क्या आ रहा है? डेरिवेटिव कहूंगा तो चेक करो, वहां 6/5 भी लिखना पड़ेगा साथ में. एंड पुट x को 1. एंड इज इट 0 और नॉट? मेन वो है 1 -2 -5 +6. check this out. This is 0. तो दिस इज आवर लक. हर बार ऐसा नहीं होगा कि पहला ही पॉइंट पुट करूं और उससे 0 आ जाए. बट दिस इज ग्रेट कि मेरा 1 के ऊपर ये 0 आ गया. अगर 1 के ऊपर माई डेरिवेटिव दिस इज 0, व्हाट डज दैट मीन? कि x -1 जो है वो हो गया फैक्टर. अगर x इक्वल टू 1 के ऊपर 0 आया है तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ f डैश x. आप x -1 से इसे डिवाइड कर देंगे. चेक इट आउट. अब ये 9th की सारी चीजें आई हैव टू एक्सप्लेन एंड दे आर यूज्ड हियर. बस क्विकली करते हैं. x² x³ -x² विद दिस अजम्पशन कि ये आप सभी आराम से कर सकते हैं. ये तो बेसिक डिवीजन है 9th क्लास का. नेक्स्ट मैंने किया -x से मल्टीप्लाई. सो -x², देन माइनस माइनस +x. फाइनली sign will change, -6x +6, and it is -6, and then -6x +6. It should be 0. ये कैंसल होगा ही होगा. So that मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया? 6/5 इंटू, यहां लिख रहा हूं x -1 आ गया था कंप्लीट फैक्टर. और फिर दूसरा x² -x -6, जिसे आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. कितना आ रही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? x plus 2 and x minus 3. सॉरी, x. x plus 2 and x minus 3. चेक इट आउट. ये आ गया इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब फॉलो द यूजुअल मेथड, नंबर लाइन. एंड नाउ दिस टाइम राउंड व्हाट विल हैपन? इसको जब 0 करोगे तो देख लो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे. 1, -2 and 3. locate these values in a systematic manner. Start with extreme right hand side क्योंकि डेरिवेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव था, इसीलिए प्लस माइनस that will work over here and you will get your required answer कि कहाँ मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग. तो सच टाइप ऑफ बाई क्वाड्रेटिक और उसमें जहां 9th का कंसेप्ट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो based on whatever I have discussed today, you have this homework. Mark your attendance quickly.
इवन आप चेक करिए, ये जो मैंने बाई क्वाड्रेटिक का लास्ट क्वेश्चन करवाया है उसके ऊपर बेस्ड ये चारों पार्ट हैं। ये वाला तो अभी मैं करवा ही चुका हूँ, सॉल्व ऑलरेडी। तो बाकी रिमेनिंग 3 आपके होमवर्क में आ जाएंगे, एक्सेप्ट द बी पार्ट। शायद बी आप नहीं कर पाए, बट एवरीथिंग अदर देन दैट इज डिस्कस्ड। सो चॉइस इज yours, जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी benefited. That's all for today's class. Now you can leave the class. I'm ending it. Thank you.